بیداری لاؤ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ نصف المیزان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ترازو کا آدھا پیرا بھر جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب بیٹھے ہوئے جلسے میں سبحان اللہ بولتے رہو، یہ دستار بندی کا جلسہ ہے۔ جن بچوں کے والدین یہاں تشریف لائے ہیں، جن بچوں کے سر پہ ابھی امامہ شریف باندھا جائے گا، آپ اندازہ لگاؤ کہ آج ان کی قسمت کا ستارہ اوج کیوان سے بھی بلند و بالا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو بارے امانت کو برداشت نہ کر کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بے شک۔ سب سے بڑا معجزہ سرکار کا قرآن پاک ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج قوم مسلم کا بچہ اپنے سینے میں اس بارے امانت کو اٹھائے گھومتا ہے واہ واہ واہ۔ کہ جس بارے امانت کو لینے سے آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑ نے انکار کر دیا، اللہ پاک فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس بارے امانت کو اٹھانے کا متحمل اگر کوئی ہوا تو وہ انسان ہوا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات کے سارے علوم کو قرآن کے اندر جمع فرما بے دیا۔ شک۔ بولو سبحان اللہ۔ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ قرآن میں علم تفسیر نہیں ہے، علم حدیث نہیں ہے، قرآن میں فن فقہ نہیں ہے، اصول حدیث نہیں ہے، اصول فقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر کائنات کے سارے علوم کو جمع فرما دیا ہے۔ جس بندے نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، تو یاد رکھو کہ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن کی عظمت دیکھو، قرآن کا معجزہ دیکھو، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ قرآن شریف میں کائنات کے سارے علوم کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں کو پیغام دیا۔ پڑھو قرآن کی آیت، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دنیا کی ہر خشک و تر سے دنیا کے تمام سوالات کے جوابات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ بے شک۔ ایک اور موقع پر اللہ پاک نے فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ۔
आवाज नहीं समझ में आ रही है, हल्की कर दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाती तो मैं उसे कुरान के अंदर तलाश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाती तो मैं उसे कुरान के अंदर तलाश करता। कुरान के अंदर है क्या? मौला अली से एक यहूदी ने सवाल किया था। मौला अली ने फरमाया सलूनी अम्मा शीतुम, जो कुछ तुम्हें पूछना हो पूछो। एक यहूदी खड़ा हुआ, बहुत बड़ा आलिम था वो यहूदी। उससे पहले एक ने सवाल किया कि आप मुझे अपने रब को दिखाओ। मौला अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। क्या देखा कि सूरज ठीक दोपहर के वक्त अपने शबाब पर चमक रहा है। आप मुझे बताओ, सूरज जब दोपहर के वक्त हो, क्या सूरज से निगाहें मिला सकते हो? नहीं। जरा जोर से बोलो, सूरज को देख सकते हो? मौला अली ने कहा सूरज को देख। यहूदी ने कहा सूरज को कहां देखा जा सकता है? मौला अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, अरे नादान, जब तू सूरज नहीं देख सकता है तो सूरज बनाने वाले को क्या देख पाए? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली से यहूदी ने सवाल किया, बहुत बड़ा आलिम था वो। उसने सवाल किया, किताबों में है कि उस यहूदी की दाढ़ी बहुत कम थी और मौला अली की दाढ़ी शरीफ बड़ी घनी थी। माशाअल्लाह, बड़ी घनी थी। मौला अली ने चैलेंज कर दिया, सलूनी अम्मा से तुम, ए लोगों जो पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें जवाब बता दूंगा। और कहां से बताऊंगा? ए लोगों, मैं उस दरसगाह का पढ़ा हुआ हूं जिसके ताल्लुक से रब ने फरमाया सनुक़रिउ का फला तंसा। ओ मेरे हबीब, मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा तुम कभी नहीं भूलोगे। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप में जरा बेदारी पैदा करो यार। वाह वाह वाह। फरमाता है मेरे हबीब, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा तुम कभी नहीं भूलोगे। उस दरसगाह के पढ़े हुए सरकार खुद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। ए लोगों, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसके दरवाजे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ने सवाल किया, बताओ कुरान में कहाँ लिखा है मेरी दाढ़ी कम है आपकी दाढ़ी ज्यादा है? जरा बताओ कुरान में कहाँ लिखा है? अगर आप जवाब सुनना चाहते हो तो जरा हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बता दें, मौला अली ने फरमाया कुरान में लिखा हुआ है तेरी दाढ़ी कम है मेरी दाढ़ी ज्यादा है। ये कुरान में है, कहा दिखाओ। मौला अली ने फरमाया खोलो 8वां पारा, पढ़ो। मौला अली कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइذनि रब्बिही ला यखरुजु इल्ला नकिदा वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा। मौला अली कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, फरमाते हैं देख कुरान में लिखा हुआ है जो जमीन अच्छी होती है वहां हरियाली ज्यादा होती है, और जो जमीन बंजर होती है वहां घास ज्यादा नहीं उगती है। मौला अली ने ऐसा जवाब दिया, वो यहूदी हैरान हो गया। मौला अली फरमाते हैं देख कुरान में लिखा हुआ है जो जमीन अच्छी होगी वहां घास ज्यादा उगेगी, जो जमीन बंजर होगी वहां घास ज्यादा नहीं उगेगी। अल्लाह पाक ने मेरे चेहरे को पाक बनाया है, तेरी जमीन पाक है इसलिए दाढ़ी ज्यादा है, तेरी जमीन नापाक है इसलिए घास कम है। मौला अली ने दिखा दिया, बल्कि दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ए लोगों यहां से ये साबित हो रहा है रब ने कुरान के अंदर कायनात के एक एक जर्रे का जिक्र फरमा दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हज़रत मुस्तफा का धर्म, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कुरान में तो सब कुछ है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाए तो मैं उसे कुरान के अंदर ढूंढ लेता। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास
कौन है जिन्हें रासुल फुक़हा कहा जाता है? बोलो सुभान अल्लाह। हिब्रे उम्मा कहा जाता है, तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। आपको बताऊं ये कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो, हवाला सुनो। बुखारी शरीफ का हाशिया सय्यदी सरकार आला हजरत ने लिखा। बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, आला हजरत के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ का हाशिया लिखा, उसका नाम रखा सरकार आला हजरत ने तालीकात ज़ाहिरा। उलमा से तवज्जो चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए दुआओं के साथ। आला हजरत सरकार ने जब हाशिया लिखा, उसका नाम रखा तालीकात ज़ाहिरा। सरकार आला हजरत लिखते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये हजरत अब्दुल्लाह के सगे खालू हैं। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इत्तिफाक से मेहमान बनकर सरकार दो आलम के यहाँ तशरीफ ले गए, और जब गए तो इत्तिफाक ऐसा कि रात रुक गए, और जब रात रुक गए तो रात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर नबूवत से उठे, अपने हुजरे से दूर तशरीफ ले गए इस्तिंजा फरमाने के लिए। हजरत अब्दुल्ला की आंख खुली, क्या देखा कि सरकार तशरीफ ले गए। मुसलमानों जरा जहन को करीब कर लेना, मैं सहाबा की जिंदगी आपके सामने रख रहा हूँ। कौन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं? इन्हें हिब्रे उम्मा क्यों कहा जाता है? इन्हें तर्जुमानुल कुरान क्यों कहा जाता है? इन्हें रईसुल मुफस्सिरीन क्यों कहा जाता है? इन्हें रासुल फुक़हा क्यों कहा जाता है? इन्हें रासुल मुफस्सिरीन क्यों कहा जाता है? इसकी वजह सुनो। हजरत अब्दुल्ला ने देखा कि सरकार तशरीफ ले गए, दिल ही दिल में ख्याल किया कि जब सरकार वापस तशरीफ लाएंगे तो वजू जरूर फरमाएंगे। क्यों? सरकार कभी बेवजू रहते नहीं थे, और सरकार का वजू टूटता ही नहीं था। ये सरकार की खासियत में से है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब सरकार वापस तशरीफ लाए, हजरत अब्दुल्ला ने सरकार के वजू के लिए एक बर्तन में पानी भर के रख दिया, और जब पानी भर के रखा, सरकार तशरीफ लाए, देखा पानी भरा रखा हुआ है। सरकार ने फरमाया, मैमूना ये पानी किसने रखा है? हजरत मैमूना ने अर्ज किया, सरकार अब्दुल्ला ने रखा है। दरियाए रहमत जोश में सरकार फरमाते हैं, अब्दुल्ला जरा करीब आओ। उलमा बयान करते हैं, जब हजरत अब्दुल्ला सरकार के करीब आए, सरकार ने हजरत अब्दुल्ला को अपने सीने से लगाया, और लगाने के बाद सरकार ने हजरत अब्दुल्ला के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक़्हिहु फिद्दीन। ए मेरे मौला, अब्दुल्ला को किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा, इन्हें दीन में फ़क़ाहत अता फरमा, इन्हें दीन का फ़क़ीह बना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बयान है, सरकार दो आलम ने जब दुआ फरमाई, सरकार की दुआ बाबे इजाबत से टकराई। मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरा सीना इल्म का मदीना बन चुका है, और जब इल्म का मदीना बना, ये नबी की दुआओं की बरकत थी कि लोग मुझे रासुल फुक़हा कहने लगे, लोग मुझे रासुल मुफस्सिरीन कहने लगे, लोग मुझे हिब्रे उम्मा कहने लगे, लोग मुझे रईसुल मुफस्सिरीन कहने लगे, तर्जुमानुल कुरान कहने लगे। ए मुसलमानों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, नगर नगर डगर डगर कुछ ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। अगर एक दूसरे से मुसाफा मुआनका किया जाए, सीना मिलाया जाए, लोग शिर्क व बिदअत का फतवा लगाते हैं कि ये तुमने शिर्क कर दिया, सीना नहीं मिलाना चाहिए। आज तुम दस्तारबंदी के जलसे में आए हो, एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर के जाओ। अगर अब कोई एतराज करे तो जवाब दे देना कि खुशी के मौके पर सीना मिलाना ये शिर्क व बिदअत नहीं, सरकार की सुन्नत है, सहाबा का तरीका है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं, सहाबा को जमात कहते हैं। दोनों को एक साथ मिला दो, अहले सुन्नत वल जमात बन जाता है। जब नबी के तरीके पर अमल करेगा, सहाबा के तरीके पर अमल करेगा, उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। अब कोई एतराज करे तो जवाब दे देना, ये सीना मिलाना किसी और की नहीं, नबी की और सहाबी की सुन्नत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर बात समझ में आ गई हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म कर दे, अभी तकरीर करें ना, तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, ये फरमाते हैं कि
अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाती तो मैं कुरान के अंदर ढूंढता। कैसे लोग थे वो? अल्लाह ने हमारी कामयाबी का राज कुरान के अंदर रखा। अल्लाह ने हमारी हिदायत का जरिया कुरान को बनाया, हमारी हिदायत के लिए कुरान को नाजिल किया। रब ने हमारा रहबर कुरान को बनाया, रहनुमा कुरान को बनाया। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हमारी कौम दुनिया में भी पीछे है, दीन से भी पीछे है। दुनिया में भी पीछे है, दीन से भी पीछे है। वो लोग चांद के ऊपर कमंदे डाल रहे हैं, जमीन के नीचों के खजानों को निकाल निकाल कर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम और आप पता नहीं कहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप अपने आप को मदरसे से जोड़ो, कुरान की तालीम हासिल करो, और जब कुरान की तालीम अपने सीने में बसाओगे, कुरान की रोशनी में तुमको वो रास्ता मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा कि कुरान के आईने में बिल्कुल साफ और शफाफ तुम्हारी मंजिल दिखाई देगी। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मदरसा इल्म का पावर हाउस है। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए, मदरसों से जोड़ना भी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज्यादा रूल, सबसे अहम रूल वालिदैन का होता है, वालिदैन का होता है। असातिज़ा सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। मुझे याद आता है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बुजुर्गों में इनका वो मकाम है जो फरिश्तों में मकाम हजरत जिब्रील का। बोलो सुभान अल्लाह। ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा। हजरत बायजीद बुस्तामी का बचपना है। इनकी वालिदा ने एक मदरसे में नाम लिखा दिया इनकी तालीम के लिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रोजाना घर चले जाते। आपकी वालिदा मदरसे में आई और उस्ताद से कहा, हजरत ये मेरा बेटा है, अल्लाह के दीन के लिए मैं अपने बेटे को वक्फ कर रही हूँ, इसे तुम तालीम दो और